यार बैसबॉल चल रहा है, सबसे पहले तो हमारे खिलाफ ही कामयाब हुआ था. करेक्ट. पाकिस्तान के खिलाफ, in which they won 3-0 against Pakistan in Pakistan, which I think Crazy. because English players subcontinents में इतना अच्छा नहीं खेलते because the ball turns. लेकिन those pitches were very flat, especially in Rawalpindi, because Rawalpindi is one of the best batting tracks in Pakistan. सही, हम लोग जब PSL भी खेलते तो it feels like we're playing on concrete. तो वहाँ का पिच बहुत अच्छा था, तो वहाँ दे स्कोर्ड 570 रन इन वन डे एंड आई वाज अमेज्ड कि भाई मतलब 70 ओवर में 500 रन कौन करता है भाई. मतलब कितना ही मारा होगा उन लोगों ने. लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया पढ़ाई में कि अब्बा ने बोला कि बेटा आपकी क्रिकेट बैन, आप पढ़ाई पे ध्यान दें. बिकॉज माई डैड, he knew that I play cricket, but he never knew that I'm good at it. I got selected for the Pakistan under-19 team. और उस पाकिस्तान under-19 के slot के जो players थे, time's up. I think this is to create more energy into the story also. Light सही है ना भाई? सही है ना? Hello everyone, welcome to brand new series live from the G20, the Global T20 League in Canada. I came here, I thought that they're going to say, Sorabh, this is time for you to make your debut as a cricketer. Apparently they said, no, we are here as a content creator. Cheap. But I'm here to make podcasts and I'm very excited because so many of my favorite cricketers are here. So many people who are going to be massive cricketers in the future, some of them who are really prominent in world cricket. We have a lot of interviews coming up. It might be anything between 10 to 20 cricketers. So there's a crazy number of cricket content which is coming up from the GT20. If you're not familiar with the GT20 this year, some of the biggest stars headlining it, Chris Gayle, Afridi, Shoaib Malik, it's a massive lineup of people. Today our episode is of course with Azam Khan. We'll come to that shortly. But before that, just to give you a small introduction of what this league is, here is a preview, voiced by me. This is the G20 League in Canada. Look at all the TVs go crazy because of the excitement of the GT20. Oh, there's a stadium, there's Chris Gayle, there's some guy, there's a guy jumping, there's a lady man catching ball, there's a guy with a loudspeaker, two people at one time. Oh, high five. Oh, Chris Gayle again. Oh, some guy, another guy. Look at this talent, Sherfane Afridi. Oh, what a diving catch. Another diving catch. Oh, boy is disappointed. Alex Hale, Chris Gayle, goodbye. GT20 excitement rising 2023. World is coming. I'm also coming at the same time. That was a great preview voiced by me. I hope you enjoyed that. Now over to Azam Khan. Azam Khan is a very hard-hitting Pakistani batter. I saw him do an interview after one of the matches here where Karishma Kotak was interviewing him and he was batting with Chris Gayle, who he's got a century partnership with. And she asked him, she's like, oh, are you the Chris Gayle of the future? And Azam Khan said, no, I'm a little boy compared to him. I mean, not so little, but I'm a little boy. And I was like, this guy's fun. He gets it. I have to have him on the podcast. And he agreed. So enjoy this fun conversation with one of Pakistan's future superstars, Azam Khan. Enjoy. And also join a Telegram group, by the way. We have a Telegram group for early updates and releases. And I have a show in Toronto on August 3rd. First show in Canada in 10 years. So please come watch that if you're around. Enjoy this episode. All right, welcome to yet another episode of an unnamed show right from GT20, the Global T20 League in Canada. Very excited to have Azam Khan with me. Fantastic knock, 100-run partnership with Chris Gayle, your idol. Maza aa gaya, matlab, maine dekha, it was a lot of fun. So, yeah, how's things going in the GT20 League? Things have been great and it's my first time in Canada, so thoroughly enjoying it. The crowd has been very supporting. Playing with Universe Boss, the guy who has been the GOAT in T20 cricket. I think it was a phenomenal partnership with him. Yeah. I learned a lot from him. Couple of bad things as well. Let's start with what are the bad things? Like how to enjoy your life and everything. Oh, like in certain, in certain. You know the way the Caribbean guys enjoy their life. I think level. Different level, yeah. And what are the positive things you learned from batting with him? Because I'm sure you've been seeing him from a long time, but yeah, I think he's my T20 hero, Chris Gayle. Even though he's a lefty, but there are a lot of things to learn from him. That जिस तरह वो power hitting करता है, and he stays calm on the crease, and if he clicks any day, he's the most destructive batter on the planet in T20 cricket especially. Yeah, मैंने तो इतने सारे IPL matches देखे थे, where I remember I think he was batting on 40 or 42 ऐसा कुछ चल रहा है. And you're like, क्या चल रहा है इसका? And then suddenly he's like 900 of 12 balls. I'm like, how are you managing this?
तो मैं ये इसका थोड़ा गूगलिंग करा था ये नॉक के बारे में, एंड आई फाउंड दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल, और उसकी जो हेडलाइन है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग हेडलाइंस आई हैव एवर रेड इन माय लाइफ. दिस व्हाट सेज, Azam Khan, son of Moin Khan and Chris Gayle. Okay, ये शुरुआत है. Azam Khan, son of Moin Khan and Chris Gayle thrashed together. Thrashed together, किसको thrash किया? मालूम नहीं. In GT20 Canada, rained fours and sixes, comma, the bowlers came. यही है, क्या कह सकते हो? Can't say anything on that. Yeah, it's good stuff. So okay, I got to ask you. So again, I think for a lot of people, a lot of the audience will be Indian. A lot of you, if you are not following Pakistan cricket, you've been killing it for very, very long now. You're 24. You played almost 100 matches. Ki ho gaya? So I've played more than 110 games, I'm sure, in like 2 years, two or 2.5 years. Crazy, of T20 cricket. Yeah. So your dad is of course the legendary Moin Khan. So your choice of becoming a keeper, okay? Because like Arjun Tendulkar decided कि ये मैं he wanted to be a bowler. Yeah. So did that ever occur to you कि भाई मैं भी keeping करूँगा, or was it like कुछ और try करते हैं in the cricket field? You're like नहीं. When I initially started my career, I was a batter and I used to bowl leg spin. अच्छा. And I used to bowl well. Leg spin मैं अच्छी करता था. तो one day हम लोग घर पे we had a big garden. So he was like, आओ मैं तुम्हें keeping practice कराता हूँ. तो मैं वहाँ कीपिंग कर रहा था, so he saw me, catching the ball and he's like, you should keep. अरे लेग स्पिन छोड़ दो, कीपिंग करो. मैंने कहा अच्छा ठीक है. अब जब कीपिंग की बारी आई तो उसमें पता चला कि भाई आपकी टीम में जगह आसानी से बन जाती है अगर आप छक्के वक्के मार के कीपिंग कर लेते हो ना. क्योंकि बैक इन द डे इतना ट्रेंड नहीं था विकेट कीपर्स का कि वो आके बैटिंग भी करें. सो एडम गिलक्रिस्ट, ये लोग, इन्होंने आके ये सारा ट्रेंड चेंज किया है. तो इनको मैं देखने लग गया एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम. तो जब फॉलो किया, एंड क्योंकि मेरे अंदर भी वही अटैकिंग इंस्टिंक्ट है जो जाहिर सी बात है वो खेलते थे. जब इंडिया से भी मैच हो तो ही यूज्ड टू लाइक उनको मैन ऑफ क्राइसिस का वो दिया था कि भाई ये आके कभी भी किसी भी टाइम रन कर सकते हैं. तो वही एक इंस्टिंक्ट मेरे अंदर भी है. और मैं मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तभी रन करने में आता है जब टीम थोड़ी डाउन हो और मैं जाके परफॉर्म करूँ. Oh, great. Your papa used to do it all the time. मैंने कितनी बार मतलब ऐसे इंडियन फैन मुझे लगा रहे यार अभी मोइन खान आएगा. क्या यार. It's like 6 down, you're like about to win. But also एक कहानी मैंने briefly I think you covered it on हंसना मना है, where you said कि you got banned from your dad's academy. Yeah. तो what did you do? मतलब exactly कुछ किया वहाँ पर कि बस across the board like so Moin Khan has a cricket academy in Pakistan, you were part of it and then you got banned from it. तो क्या हुआ exactly? Basically हुआ ये था कि मैं पढ़ाई में I was very weak. सही है, मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था. The only thing जो मेरे दिमाग में चलती थी that was cricket. क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं था. मतलब मेरे स्कूल के दोस्तों में मैं क्रिकेट की बात करता था, वो बोलते थे कि भाई ये पागल है. सही है. तो इन दी एंड के एक ऐसा लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया पढ़ाई में कि अब्बा ने बोला कि बेटा तो आपकी क्रिकेट बैन, आप पढ़ाई पे ध्यान दें. बिकॉज माई डैड ही न्यू दैट आई प्ले क्रिकेट बट ही नेवर न्यू दैट आई एम गुड एट इट. तो जाहिर सी बात है ब्राउन पेरेंट्स का ज़्यादातर यही होता है कि वो कहते हैं कि पढ़ाई शुड बी द मेन थिंग. प्राइमरी चीज़ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए. तो उस वजह से मैं 6 महीने के लिए अपनी फादर की एकेडमी से बैन हो गया क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम जब तक अपने रिजल्ट अच्छे नहीं लाओगे तब तक मैं तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा. अरे वाह. लेकिन हम तो काले जूते पहन के निकल गए रिक्शों पे, बाइकों पे, और बस ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहे. तब उनको पता चला कि भाई इसको सच में शौक है तो इसको खेलने दो. अच्छा, तो मतलब ये अल्टीमेट चीज़ है कि भाई तुझे क्रिकेट खेलना है तो तू पढ़ाई में अच्छा हो. हाँ. यू आर लाइक नहीं ये अच्छा, ये अलग चैलेंज है मेरे. हाँ एग्जैक्टली. वो कहते हैं ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. तो मेरी जिंदगी में ये उल्टा था. तो मैंने कहा खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और अभी तक सब सही चल रहा है. Absolutely. तो I want to ask you this as a younger cricketer. अभी मैंने बेन कटिंग और शर्फेन रदरफोर्ड से बात की थी. वो लोग भी ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई टेस्ट मैचेस का इतना इंटरेस्ट नहीं है. इज दैट द सेम थिंग फॉर यू? यू आर लाइक T20 ही बाप है सब चीज़. नहीं देखिए, वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली इट्स अ क्राउड एंगेजर. सही है वाइट बॉल क्रिकेट, क्योंकि अगर आप T20 फॉर्मेट देखें इट्स अ शॉर्टर फॉर्मेट, और जाहिर सी बात है दुनिया में लोगों को और भी काम है करने को. Correct. सही है. तो वो दे प्रेफर कि हम एक छोटा फॉर्मेट देखें जिसमें उनको ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल रही हो. तो आप अगर आप देखें तो क्रिकेट इस तरफ ही जा रही है, बिकॉज T20 लीग्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं अब दुनिया में. कनाडा भी आ गई, USA हैव स्टार्टेड देयर ओन लीग, फिर जिम एफ्रो T10 आ गई है अभी. तो ये छोटे छोटे जो टूर्नामेंट्स हैं
इनसे प्लेयर एंगेज होते हैं एंड इट्स लाइक फॉर मी आई थिंक मनी डजंट मैटर टू मी राइट नाउ बिकॉज आई एम एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ कि मैं भी अपना करियर स्टार्ट किया मैंने तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर जगह खेलूँ, हर जगह की कंडीशन अडेप्ट करूँ. तो मेरा थोड़ा ये थिंकिंग है. मतलब मैं तो वेला हूँ तो मैं लिटरली मैं एशेस का टेस्ट मैच देख रहा हूँ. आई सॉ बाय द वे योर डेब्यू आल्सो इन इंटरनेशनल क्रिकेट. Yeah, I was in England. Yeah. एंड वो अफगानिस्तान वाला मैच आल्सो है. सो just I mean listen, let's not bring up these memories. कोई नहीं. अगर आप मेरी जगह होते तो आपके अब तक बाल झड़ चुके होते. अरे नहीं यार, मेरे तो बहुत बाल है पर सर पे नहीं है. There are many pitches on my body. No, but I felt bad obviously, but I think every time as a cricketer, when I think the younger lot of cricketers like ईशान किशन भी बोल रहा है कि हमारे नया ज़माना है, हम छक्के मारेंगे टेस्ट मैचेस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. So it's like I don't think does failure not matter that much in. नहीं देखें ब्रदर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिकेट के बारे में. इन द एंड इफ यू आर अ बैट्समैन यू हैव टू स्कोर रन्स. आप पैर के बीच में से बल्ला निकाल के मारो, सही है, आप उल्टे मुंह से बल्ले से मारो, इन दी एंड आपको रन बनाने हैं. इन दी एंड सिलेक्टर रन देखेगा, ये नहीं देखेगा कितना स्टाइलिश है ये वो सब. डजंट मैटर एनी मोर. स्टीव स्मिथ, वेरी अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर, ही इज नंबर 1 बैटर इन टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ. सही है. ऐसे कितने बैटर्स हैं? चंद्र पॉल आप देख लें, ही हैज मोर देन 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट. ब्रायन लारा, ही हैड अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल. सही है. तो ऐसे काफ़ी बैटर्स हैं दुनिया में, बट इन द एंड यू हैव टू स्कोर रन्स. तो रन्स बनाओगे तो भाई आगे जाओगे. और अगर आप टेढ़े बल्ले से बना रहे हो, उल्टे बल्ले से बना रहे हो, इन दी एंड आपने रन बनाना है. And you've been doing damn well. I mean, PSL में I've seen so many of your knocks. You just like वही जो critical juncture में I remember एक वो क्या 97 you made when your नहीं. My dad was the coach of the other team. Yeah. That's great. What a great moment to watch. Yeah, it was really nice. I want to talk to you about PSL fights because अभी IPL and PSL are competing on who has the best fights every year. So I think इस साल IPL जीत गया because of Naveen Ulak and Virat Kohli. But you've been witness to a lot of jhagda and all that kind of stuff around you. What has been most famous one was of course Sarfaraz and Sohail Khan. But what are the others where you were like भाई बहुत मजा आ गया देख के, because मैं involved नहीं है तो बहुत मजा आया. मुझे जो एक हुआ था बिटवीन मोहम्मद आमिर एंड अहमद शहजाद व्हिच वाज इन PSL 4 जब मुल्तान सुल्तान का वो डेब्यू सीजन था. तो उसमें हुआ ये कि आमिर वाज एट हिज पीक. वो एक तो उसको कम बैक करने में भी टाइम हो गया था, तो ही वाज बॉलिंग क्विक इन दैट सीजन. तो हम लोग मेरे ख्याल से शायद ग्राउंड में थे या मैं घर मतलब होटल में बैठ के मैच देख रहा था. तो उसने पहला बाउंसर किया, अहमद शहजाद ने मिस की. तो आमिर भाई आपको पता है कितने एग्रेसिव हैं, वो तो मेरे साथ भी इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, हालांकि बड़ी अच्छी मेरी उनसे. तो एक दो उन्होंने निकाली, फिर उन्होंने फिर बाउंसर किया, वो टॉप एज पे चौका करने बोला गुड शॉट. तो ऐसी जब चीज़ें PSL में होती है ना तो इसका फन आता है. अरे बहुत, क्योंकि हमारे ना सिटीज़ में भी थोड़े होते हैं, जैसे कराची वर्सेस लाहौर इट्स अ बिग गेम, पेशावर वर्सेस कोयटा इट्स अ बिग गेम. तो पेशावर वर्सेस कोयटा इज लाइक द PSL क्लासिको. तो ये फन फैक्टर है PSL में कि लड़ाई झगड़े होते हैं. अरे बहुत मजा आता है. तो लेकिन आउटसाइड द फील्ड एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज वेरी चिल. पर वही ऑन द फील्ड आई थिंक समटाइम्स पीपल जस्ट लाइक टेंड टू ओवर एक्ट. आई मीन लाइक कमेंटेटर्स एंड ऑल लाइक अरे ये क्या कर दिया. हम लाइक भाई स्पोर्ट कर रहा है वो, दिस इज पीक एड्रेनलिन, यू वांट टू सी एज अ व्यूअर आल्सो. थोड़ा बहुत एग्जैक्टली थोड़ा बहुत होता है और क्राउड भी एंगेज होता है इस चीज़ से. करेक्ट कि भाई अगर हल्की सी लड़ाई हुई है तो आओ भाई अब मजा आएगा मैच देखने का, कि बॉलर आउट करने की करेगा और बैट्समैन रन बनाने की करेगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं. तो बट टॉकिंग अबाउट क्राउड एंजॉयिंग, अभी इस साल आई थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान मे प्ले ईच अदर 4 times. तो मतलब ये प्रोस्पेक्ट तो ओहो हो मतलब और सब क्रिकेट छोड़ दो लाइफ में, यही 4 मैचेस पे फोकस होगा. आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज योर फेवरेट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मेमोरी जो व्हिच यू सॉ एंड यू लाइक ओहो मजा आ गया. लाइक आई नो माइन, वो अभी रिसेंटली हुआ. आपका क्या था? अरे जो अभी विराट कोहली वाला हुआ, विराट कोहली हैरिस रॉफ, आई मीन वो तो अलग वो तो नेक्स्ट लेवल था. बट आई थिंक बाबर एंड रिजवान पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड कप. मेरा उल्टा बोल दिया लाइक यू आर लाइक तेरा देख के मैं बता दिया. मैं भी कुछ और कहने वाला था लेकिन इसके बाद मैंने कहा यही कह दो. कौन सा वाला बोलने वाले थे? मैं अगर पाकिस्तान इंडिया क्लैश की बात करूं तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल would be my favorite. Yeah.
It's great vibes, no? Great vibes. And as a cricketer, like, isn't that like for you also? You're like, भाई यही खेलना है. No, my dad and I we were sitting in the TV lounge घर पे और विराट कोहली का जब वो कैच छूटा एज पे अजहर भाई ने छोड़ा तो मैंने कहा बे यार गया मैच तो my dad is like अगली बॉल पे फिर आउट है. मैंने कहा अच्छा भाई देख ले तो मैंने कहा भाई वो भी विराट कोहली है and he got out the very next ball और मैं यूं उनकी जैसे मैंने कहा हो तो that was like quite surprising कि भाई मतलब he has that game awareness कि उनको पता है कि भाई under pressure किस तरह खेलना होता है क्या चीज़ें होती हैं. So I'm sure वो 90s के टाइम में वो क्रिकेट भी डिफरेंट होती थी because एक बॉल होती थी and it used to reverse and Wasim Wakar bowling at their peak and he has played against me in first class cricket but with them you know bowling at that speed reversing the ball. So they needed some skill. ये तो rule I think ये ODI वाला rule जो है it's very stupid. It's stupid. I don't think it's stupid. I think it is fair because you're a batter. No, because it's white ball cricket. white ball तो लग के भी ज़्यादा जोर से जाता है. अच्छा ऐसा है क्या? देखिए वनडे क्रिकेट I think थोड़ी पीछे जा रही है because T20 इतनी आ गई है. तो most of the players जो हैं वो they're getting like a yearly contract. Especially with the IPL franchises because उनका क्योंकि मैं भी बारबाडोस रॉयल्स से खेला हूँ 2 साल सही है so I know कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं ठीक है तो उसमें फिर वो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट दे रहे प्लेयर को. अब जैसे MI है मुंबई इंडियंस उनके वही प्लेयर देर प्लेइंग इन द मेजर लीग साउथ अफ्रीका और ऐसी जगहों पे तो उनको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ऐसा है. That's the future, yeah. You Caribbean Premier League you had a great few knocks. वो जगह का वाइब है. I've never been to Caribbean but it's अलग ही वाइब है मतलब it seems laid back and aggressive and alpha and fun at the same time. Yeah, it does. तो Caribbean में what are some of the vibes that you had with some any fun stories in the CPL? I'm sure hanging out with some of these cricketers would be like जैसे you said Chris Gayle. Any other great stories with any of these people? यार काफ़ी लोग थे और बड़े मज़ेदार सीन में कैरेबियन में. तो मतलब अगर हम इंडियन खाना कभी मंगाते तो लोग हमें वही कैरेबियन के लड़के आगे बताते कि भाई ये इंडियन खाना है इसको यूं करके खाना. मैं बोलता हूँ भाई हम लोग रोज़ खाते हैं ये हमें क्या बता रहे हैं इस खाने के बारे में. तो ये कुछ चीज़ें होती थी और वहाँ समोसे को समबूसा कहते हैं. समबूसा अच्छा होता वही है लेकिन हम समोसा कहते हैं उससे. तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं. बाकी बीफ ऑफ बारबाडोस. हाँ बीफ ऑफ बारबाडोस डाल दो बीच में यही है. हाँ बारबाडोस से खेलें 2 साल अब तीसरे साल अब गयाना से खेलूंगा जाके. बट what a interesting life you have as a traveling cricketer. है मतलब it's so interesting. मतलब अभी क्या कनाडा में हो फिर अभी इसके बाद कहाँ जा रहे हो? इसके बाद मैं लंदन जा रहा हूँ. लंदन से कैरेबियन चला जाऊंगा. Isn't it like did you imagine कि मतलब great like I'm 41 years old. Okay जब when we were young it was like हाँ क्रिकेट का ये 4 ऑप्शंस थे और इसकी वजह से काफ़ी लोग मेरे पापा के जनरेशन के जो लोग थे हर उनमें से किसी के पास एक कहानी कि मेरा दोस्त था वो क्रिकेटर था अगर IPL होता उसके टाइम पे था. ये होता है बट नहीं यार उस टाइम के क्रिकेटर्स भी जो हैं उन्होंने भी काफ़ी नाम बनाया अपना. एंड यू नो दे बीन ऑन मीडिया ऑल द टाइम. कोई कमेंट्री गिग्स कर रहा है कोई यू नो दे डूइंग एडवर्टाइजमेंट से वो सब तो पैसे तो बना ही रहे ना क्योंकि नाम इतना बना लिए कि लोग देखते हैं तो फिर उनको ही मज़ा आता है. जाहिर सी बात है क्योंकि वो उस टाइम कितने बड़े लेजेंड हैं गेम के बस उनकी लाइफ चल रही है आराम से. One of my favorite YouTubers is Shoaib Akhtar, which is a sentence I didn't think I would ever say. Shoaib भाई बहुत मज़ा आता है. Shoaib भाई straight up. Yeah. Okay, so there's a few more questions that I have for you. Actually काफ़ी सवाल तो बहुत सारे हैं. Okay, what is this? Yeah. I like this one story. I remember जब ये हुआ भी था. I remember reading the story where you were getting trolled a lot for weight and all that kind of stuff, and you took sticky notes और फिर अपने बिस्तर के ऊपर बिस्तर के सामने and you used to see it every morning. Yeah. I mean ये tactic कहाँ से मिली? Like is it just like यार ऐसी रैंडमली आ गई थी दिमाग में. मैंने कहा यार शायद कुछ मोटिवेशन मिल जाए. बट वो मोटिवेशन थी वेट लूज करने की. वेट तो लूज हुआ नहीं लेकिन रन ज़्यादा होने लग गए. करेक्ट. लेकिन नहीं भाई फिट होना है जाहिर सी बात है. मेरे पास भी वो नोट्स पड़े हुए हैं लेकिन अब दीवार पे नहीं है. अब मैंने उनको अपनी ड्रॉअर में डाल दिया है. करेक्ट. लेकिन मुझे पता है कि वो हाँ मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ से वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक
ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता. करेक्ट. एंड इट्स अब ये रिसेंटली तो यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग और फिर भी रन बना रहे हो. कहाँ, मैंने कब की इंटरमिटेंट फास्टिंग? अभी तो बताया वो करिश्मा को यू से ये मैंने कहा मैं खाली पेट आया हूँ. मैंने कहा ज़रूरी है थोड़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज PSL में भी कुछ नॉक्स ऐसे जो मैंने खाली पेट खेले थे. अच्छा, तो चल रहा है ना, मतलब हाँ, मतलब चल जाता है कभी कभार. सुबह के मैचेस में चल जाता है. अच्छा, you can't wait till the end. Yeah, exactly. ये तो I think was one of I heard this story and this is a very funny story. Like I heard 3-4 stories and I'm like I have to talk to you. Where एक तो was कि सरफराज और and you decided कि भाई थोड़ा वजन कम करना है. You stopped eating and then you started playing matches. You're like हम हार रहे हैं. हाँ, तो मैंने उनको बोला कि भाई हम जब तक गंदा खाना खा रहे थे, like हम लोग high calorie food खा रहे थे all the time. We used to have like junk food and everything. Yeah. But we were winning and we were enjoying that. Yeah. सही है, लेकिन जब हमें पता चला कि भाई नाम आने वाला है टीम में, तो ज़रा काम पे लग जाओ, दिहाड़ी पे लग जाओ. तो फिर हम लोग ज़रा हल्का हाथ रखा हमने खाने पे and we started losing. तो मैंने कहा यार हम लोग खाते हुए ही अच्छा थे, हम लोग जीत रहे थे. मैंने कहा जब से हम लोग भी एक अच्छे खाने पे आए ना, अच्छा खाना खाना हमने स्टार्ट किया, तब से हम हारने लग गए. और यही चीज़ कोयटा के साथ 3 सीज़न एक्स्ट्रा रही. खैर मैं तो लकीली कोयटा से बाहर हो गया, तो मैं फिर I was a flying bird then. But I think people also underestimate how tough it is to lose weight. It is tough. You know, you need that gap to lose weight, especially when you're playing cricket throughout the year. It gets tough. You can't lose weight in between because it will affect your performance. People will think that I'm saying stupid things, but it is actually true. क्योंकि if I'm playing with 214, मेरा bat weight है, I'll suddenly lose weight. It'll get heavier for me. सही है? Correct. It'll get heavier for me. तो हर चीज़ का एक slow process है. कोई भी चीज़ overnight नहीं होती. भाई if you want to be successful in life, there are no shortcuts. Correct. तो shortcuts तो है ही नहीं. भाई आप भी मेहनत करके यहाँ तक आए ना. नहीं. हाँ, फिर वो just फिर आपके पास पैसे बहुत होंगे. by good looks. People are like इतना sexy बंदा है, इसको तो views आने ही चाहिए. नहीं तो देखे ना, ये मजाक करने में भी तो मेहनत है ना. I'm sure, yeah. But because I've also been trying to, I think like you realize over time that it becomes a lifelong thing for everybody. Yeah, it and does. then for some people it's more, and you're like it's a lot of work to try and. भाई it is, क्योंकि अब cricket is such a profession के भाई पहले तो क्रिकेट को प्रोफेशन ही नहीं मानते थे. पहले तो कहते इट्स अ हॉबी. तो मेरे साथ स्कूल में भी यही होता था कि थे भाई इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ हॉबी. लाइक इफ यू वांट स्टडी, यू वोंट गेट अ डिग्री, तुम कहीं नहीं पहुंच सकते. अब लाइक मिस अपना ख्याल रखें, ठीक है, आप एक दिन मुझे टीवी पे देखेंगी. तो स्कूल में भी ऐसा होता था मेरे साथ. तो स्कूल वाले किसी का कभी मैसेज आता है क्या कि अरे भाई तूने दिखा दिया यार? यार मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं स्कूल से अपने कि वी सॉ यू ऑन टीवी, कि तुम कितना अच्छा खेल रहे हो, ये वो सब. मेरी उनसे स्कूल में बात नहीं होती थी. बट कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं who have been with me through thick or thin, और वो मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहे. तो हमेशा उनसे मतलब हेल्प मिलती रहती है हर चीज़ में. कुछ भी लाइफ में चाहिए हो, कुछ करना हो, तो हर चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, which is like nice. I think it's good to have good friends around you. Yeah, it's good friends, and also you need like 7 good friends. Is only 7? Yeah, 7 is a. Yeah, I think 3 are more than enough. 3 is enough or what? 3 is enough. काफी है, yeah. 3 दोस्त काफ़ी हैं आपके. Okay, you're one of the most explosive batters in world cricket with spinners. मतलब वो जैसे वो like when I see you bat against spinners, I'm like वो सहवाग वाला पोट याद आता है that I don't even consider off spinners bowlers. So what is this attitude towards spinners where you're like अरे like I remember एक अफरीदी का ओवर था where you hit him for 5 6s in one match. तो what is it कि मतलब was it कि जब आप छोटे थे तो आप बहुत spinners के साथ खेलते थे, और was it just that I know how to read them, I have no this ब्रो कराची में सीन ये है, कराची में ना स्पिन ट्रैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं. अच्छा. तो मैं जो अपनी अंडर-19 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट वगैरह सब खेला हूँ, आई यूज्ड टू प्ले ऑन स्पिन ट्रैक्स. और वहाँ रन करना मुश्किल होता है स्पिन ट्रैक्स पे स्पेशली, क्योंकि वहाँ नए बॉल से भी स्पिनर्स आ जाते हैं. अच्छा. ऐसा है. तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में रूल बन गया था कि भाई 10 ओवर जो शुरू के हैं वो फास्ट बॉलर ही करेगा, ताकि अच्छे फास्ट बॉलर निकले कराची में से. तो लेकिन कराची में जब स्पिन ट्रैक्स बनते थे तो आई न्यू कि भाई आई एम ए मिडल ऑर्डर बैटर, तो मुझे तो स्पिन ही खेलनी होगी जाके. तो वहाँ से स्किल सेट डेवलप हुआ सारा. फिर अब्बू की एकेडमी पे इतना खेला हूँ मैं वहाँ भी, क्योंकि हम लोग जो हमारे होली मंथ रमज़ान में जो क्रिकेट होती है उसमें भी ज़्यादा स्पिन ट्रैक्स होते हैं हर जगह पे जहाँ भी हम खेलते हैं. तो उसमें अगर आप एक दिन में 2-2 मैच खेलेंगे,
एंड you'll be playing spinners every single day, तो उसमें आपका स्किल सेट भी अच्छा होता रहेगा. तो मेरा ज़्यादा स्किल सेट जो है वो रमज़ान क्रिकेट से और अंडर-19 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से काफ़ी मेरा ऊपर गया. How interesting. तो अभी that video of you hitting Shahid Afridi, obviously legendary. पर तुम शाहिद अफरीदी को कई बार देखते हो and you're like this, what is this age of this person? Because it's still competing at 46. Yes. और ये CT20 लीग में I realized this Chris Gayle, Shoaib Malik and Shahid Afridi and now Harbhajan Singh, and I'm like between these I think ये लोग गैरी सोबर्स के टाइम से खेल रहे हैं. नहीं इतने पुराने भी नहीं है यार. इतने पुराने नहीं. शाहिद भाई I think he made his debut in 96. Yeah, 96. 96. सहारा कप जो भी था. सहारा कप भी आई थिंक कनाडा में था. हाँ आई थिंक कनाडा नहीं उन्होंने केन्या में किया था, नायरोबी में किया था आई थिंक 100. अच्छा पर जो on 36 balls 36 37 मुझे याद ऐसा ही है. आई थिंक नहीं है कुछ जो भी था ऐसा ही है. यस. Do you also as a batter who's aggressive think and look at all these records and go like मैं भी करेगा? यार मेरा टेक्निकली मतलब दिमाग में तो कभी आया नहीं कोई रिकॉर्ड्स बनाने का, बट मेरा ये है कि हाँ मैं खेलता हूँ तो जिस चीज़ के लिए मैं मशहूर हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं वही करता रहूँ. राइट. तो इसलिए मुझे फ्रेंचाइज क्रिकेट बुला रही है खेलने के लिए, बिकॉज वो चाहते हैं कि मिडिल ऑर्डर, स्पेशली मिडिल ऑर्डर एक ऐसी जगह है जो थोड़ी ट्रिकी होती है. तो वहाँ पे आपको पता है वर्ल्ड क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं. मतलब मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन हाँ मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा कि मैं इसी तरह खेलता रहूँ. And also handling the pressure like you said. Yeah, I have to handle the pressure because वो एक spot ऐसा है कि या तो आप 30 for 3 हैं inside the power play, either you're 150 for 2 in 15 overs, so you have to go and finish the game. Yeah. So it's tricky. और अभी with your team with Mississauga it's happened 3 times now. It's a tough time. I had to be the savior for 2 games, but कितने humble हो यार आप. Yeah. It's like as the savior of the team. No, but you've done fantastically well. Okay. तो क्या out हो जाता? नहीं ना. Okay, I want to talk to you about general test cricket just for a second, क्योंकि अभी ये Ashes का मैच चल रहा है और अभी Bazball के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं. And Bazball, the idea of them is that we are revolutionizing test cricket. We're trying to make it entertaining. Yeah. So do you watch a lot of test cricket? I do. And what do you think of this ये Bazball जो चल रहा है? What do you think? यार Bazball चल रहा है, सबसे पहले तो हमारे खिलाफ ही कामयाब हुआ था. हाँ, correct. पाकिस्तान के खिलाफ in which they won 3-0 against Pakistan in Pakistan, which I think Crazy. because English players सब continents में इतना अच्छा नहीं खेलते because the ball turns. लेकिन those pitches were very flat, especially in Rawalpindi, because Rawalpindi is one of the best batting tracks in Pakistan. सही हम लोग जब PSL भी खेलते तो it feels like we're playing on concrete. तो वहाँ का पिच बहुत अच्छा था, तो वहाँ they scored 570 runs in one day and I was amazed कि भाई मतलब 70 ओवर में 500 रन कौन करता है भाई. मतलब कितना ही मारा होगा उन लोगों ने. तो फिर मैं जब टेस्ट क्रिकेट वो देखा तो मैंने इंगेज हो गया. मैंने कहा यार ये तो बड़ी तेज क्रिकेट खेलने तो देखना पड़ेगा भाई. 110 बॉल पे हैरी ब्रोक 150 कर रहा है, तो इट्स मोर लाइक वन डे क्रिकेट नाउ. और बहुत एंटरटेनिंग है. एंटरटेनिंग है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इन टेस्ट क्रिकेट बिकॉज ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ बॉलर का अगर स्पेल लग जाए तो आप भले 200 पे भी खेल रहे हो तो वो आपको आउट कर देगा. इट्स अबाउट द राइट रिदम. So do you practice for test cricket? Do you practice? I play first class cricket back in Pakistan. I played 16 games in 2 years. So I think that's a lot of games. That is a lot. For 2 years. तो हमारे back to back games होते हैं first class. There's like no break between. अच्छा 8 तो 10 game continuous होते हैं. हाँ तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है because we use the Kookaburra ball और उस पे ना ये होता है कि the tracks are very batting friendly. तो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स पे होता है कि कभी कभार हमारे जो मैं पहला सीज़न खेला हूँ अपना डेब्यू सीज़न, फॉर द फर्स्ट 15 गेम्स इन द कायदे आजम ट्रॉफी ऑल वर ड्रॉ. ओह वाओ, दैट्स क्रेजी. नॉट अ सिंगल गेम हैड अ रिजल्ट. अच्छा. और एक हमारा गेम था जिसमें हम लोग एक मैच जीते थे और वो भी मतलब सो वी वर ऑन द टॉप. वाओ. तो हमने कहा कि भाई यार एक मैच जीत गए, अब तो डायरेक्ट फाइनल खेलेंगे. And the next 5 games we lost. Oh shit. तो ये बड़ा टफ है पाकिस्तान में कि जब आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिलती हैं, स्पेशली इन पंजाब साइड, बिकॉज वहाँ एक तो पानी भी अच्छा है, आउटफील्ड्स भी अच्छी हैं और पिच काफ़ी फर्म होता है वहाँ पे. तो 5 के 5 दिन it plays the same. Yeah. Okay, I have a couple more questions and then we'll release you from these clutches. Okay, I'm sure मतलब मोइन खान के बेटे के advantages is that you are surrounded by a lot of people who played cricket with him. Yeah. And I'm sure कि कुछ ना कुछ कहीं ने किसी ने कुछ बोला होगा भाई like अरे ये तो interesting point है.
I mean, I know I started that question very weirdly, like Moin Khan ke bete ke advantages, but I went in a different direction. See, I didn't go predictable direction. ये पर्ची का क्या logic है? What is the like? Parchi means Receipt it means, but no, it means receipt, but it means undeserving. Oh, acha. That's, but that's got to be like a tough thing to deal with. Yeah, 100%, bro. Especially in South Asian. I'm sure it happens in India too. It's not like in Pakistan only. I think it's all over the world. कि पर्ची सिस्टम सिफारिश जिसको कहते हैं हाँ करेक्ट कि आप मेरी सिफारिश कर दें तो मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं आप किसी पे जैसे आप कभी मतलब पार्लियामेंट में आपको कोई काम निकलवाना हो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से यार मेरी सिफारिश करके काम निकलवा दें तो इस तरह कहते हैं हम लोग पर्ची के पर्ची से आया है तो I mean just to give context of this कि 2020 you were in the PSL you got selected for this thing and the crowd was chanting पर्ची I mean, that's got to be a lot, especially like as a young person, like when you're like dealing with this craziness. Yeah, it was craziness, but people didn't knew that I came through a process. I played under 16 cricket, nationals, under 19 में nationals खेली 2 साल. I got selected for the Pakistan under 19 team. और उस Pakistan under 19 के slot के जो players थे, time's up. I think this is to create more energy into the story also. Light सही है ना भाई? सही है ना? हाँ सारे देख लीजिए एक बार. I think वो ऐसा ना कि चलेगा. It's okay. We'll continue. Like I like this vibe more actually now. I feel like we can have an intimate conversation. Please sorry. हाँ you interrupt. हाँ. So मैं ये कह रहा था कि हाँ it was tough. तो मैं बता रहा था कि मैं पूरे प्रोसेस से आया प्लेड अंडर 16 नेशनल अंडर 19 नेशनल आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पाकिस्तान अंडर 19 अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम एज का कुछ मसला था आई वाज लाइक 20 days above from the cut off date so I didn't went for the emerging Asia Cup it was under 19 Asia Cup then it was the World Cup so I got selected for the Pakistan team but at the last day मुझे बाहर कर दिया because मेरा वो cut off date का वो था तो वहाँ के उस टाइम के जो हेड थे नेशनल क्रिकेट अकेडमी के उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा तो दे वर लाइक कि भाई तुम्हारी तो एज का मसला है मैंने कहा सर ना 20 दिन का बच्चा बोल सकता है ना न्यू बॉर्न बेबी बोल सकता है तो कोई फ़र्क है नहीं लेकिन अगर आपने बाहर कर रहे हैं तो ठीक है कोई नहीं तो उस पूल ऑफ प्लेयर्स में से जो सारे अंडर 19 का बैच था दे ऑल वेंट टू द ड्राफ्ट ऑफ PSL तो उसमें फिर मैं सिलेक्ट हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरी डैड की टीम ने ही पिक किया But my dad didn't want it to pick me for the team. But Nadeem Umar, who was the owner of Quetta Gladiators, he picked me. अच्छा. Because मैं उनकी तरफ से रमज़ान में क्रिकेट खेलता हूँ. तो he saw me playing there. तो वहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया but people were like मोइन खान का बेटा है तो but which is not a bad thing I'll say. तो फिर when I played my first season which was PSL 5 because दोनों साल में bench था ज़्यादातर games. From 20 games, I played only 1 game in the first 2 years. But next season, मैं सारे game खेला. And the first game of the season was against Islamabad United, जो अब मेरी अपनी currently team है. So when I was going into bat and there were like 30,000-40,000 people in the stadium. And they were chanting Parchi, Parchi, Parchi. And I was like, भाई नहीं, अब घुस गया ground में, अब करना है perform. Correct. सही है. So I scored 59 of 33 odd balls. Well done. And वो पर्ची से फिर सब आजम हो गए थे तो मैंने कहा सालों तुम लोगों को बैट भी नहीं दिखाऊंगा मैं तुम लोग हो ही 2-faced बट नहीं यार अब काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि इस साल when I was playing the PSL मतलब इतना ग्रैंड वेलकम हुआ है मेरा होम स्टेडियम में when I was going into bat against Karachi Kings we were 70 for 3 and we had to chase 129 more in 60 balls. Shit. Yeah. And I finished the game. Oh, well done. तो मैं पूरा मैच फिनिश करके नॉट आउट आया हूँ और जब मैं ग्राउंड में एंटर हो रहा था ना लाइक आई कुड फील द गूज बम्प्स कि भाई पीपल वर लाइक आज़म 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 मतलब हाँ मतलब तारीफ नहीं है यहाँ पे लेकिन आई फेल्ट दैट कि मुझे काफ़ी मज़ा आया उस चीज़ में तो इट वाज अ ग्रैंड वेलकम फॉर मी वो एक बंदा था रिमेंबर देयर वाज दिस वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हु यूज्ड टू डू दिस ऑन द बैट नहीं दैट वाज केजरिक विलियम्स वो बॉलिंग करके करता था तो यू शुड दैट शुड बी लाइक ये लो तुम्हारी पर्ची नहीं मैं अगली दफा जेब से निकाल के दूंगा हाँ भाई ये रही बड़ी पर्ची अरे पर्ची नहीं रजिस्टर
पूरा निकाल के घूम जा. Anyway, Azam, thanks a lot for your time. Really appreciate it. Thank you so much. Azam Khan, always enjoyed seeing you back. Really, Much love. I think I saw your interview with Karishma Kotak. I'm like, अरे इससे बात करने का ही मेरे को. So thanks a lot for your time and follow Azam everywhere. I'll put the Instagram links and one of the future stars of Pakistan cricket. Thanks a lot for your time. Again, GT20 is on YouTube. You can check out highlights of every match 4 hours after it comes out. And I'm also going to do a couple of stand-up shows on 3rd of August in Toronto. So if you're around in Toronto, please come and enjoy it. Azam, thanks a lot for your time. Appreciate it. Thank you, brother. Dhanyawad. Enjoy. See you later, everybody. Wait, मेरा goodbye क्या था? I forgot my goodbye only. Supposed to say something. Love you all, marry me. Goodbye. See you. Thanks a lot, man. Alrighty, brother. Take care. Good, right? Yeah, damn good fun, man. Maza aaya. Take care, brother. Said some new stories also, which is great.